Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 3, exercise 3.2 of NCERT Maths book. This is second question, first, second and third part. So, in this question of A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, and those ratios we have to find out, and that applying that we have to say whether the given equation has unique solution या many solutions या no solution, whether the line is what, consistent or inconsistent, that we have to find it out. 5x minus 4y plus 8 equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0. These are the two equations are given. What is the standard form of linear equation? I told you standard form of linear equation what? Equation of what? Two variables क्या है? a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Then second one is a2x b2y plus c2 equals to 0. So, you have to compare the ratios of this coefficient of x, coefficient of y and constant. So, what is the ratio? a1 upon a2, this is coefficient of x. कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या है? x का मल्टीपल है. x का मल्टीपल क्या है? a1 है. तो a1 है तो x a1 अपॉन a2 इसका लेंगे और b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 देखेंगे. तो इसका क्या है? थ्री कंडीशंस आर देयर. व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? कंडीशन बाय कंपेयरिंग दिस थ्री कंडीशंस क्या है? द थ्री कंडीशन इफ a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then the equation has unique solution. That means what? Intersecting line होगा, that means consistent होगा. ठीक है. अगर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 आ गया और c1 अपॉन c2 भी आ गया, सारे रेशो एक ही आया, देन द टू इक्वेशंस हैज़ व्हाट? इट हैज़ द इक्वेशंस हैव व्हाट? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट होगा. और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया किसके साथ? b1 अपॉन b2 के साथ आ गया. अगर c1 अपॉन c2 के साथ नहीं आया, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन नो सोल्यूशन. द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट हो गया. ठीक है. अब हम करेंगे. हमारा इक्वेशन क्या है? 5x 5x minus 4y plus 8 equals to 0. We can compare with the standard form of equation क्या है? a1x plus b1y plus c1 equals to 0. हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है? a1. यहाँ हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है? 5 है. सो a1 equals to 5 लिखेंगे. और b1 y का कोएफिशिएंट क्या है? b1. यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट क्या है? साइन के साथ लिखना पड़ेगा -4. फिर c1 क्या है? कांस्टेंट है. c1 इक्वल्स टू 8 हो गया. अभी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अभी सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 equals to 0. This also we have to compare with a2x b2y plus c2 equals to 0. मेरे इंट्रोडक्शन क्लास में सारे मैंने बताया था, आप उसको देख लें. तो x का कोएफिशिएंट क्या है? a2 है. यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है. तो वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस. ओके. सो a2 इज व्हाट? 7. सो a2 इक्वल्स टू 7, b2 इक्वल्स टू 6 and c2 equals to
-9। अभी हम क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 क्या है, 5 अपॉन A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, है ना, ये हो गया। देन A1 अपॉन B1 अपॉन B2 that equals to B1 is how much, first equation -4 and second equation is 6, 2 2s are 2 3s are, that B1 upon B, that implies B1 upon B2 equals to -2 upon 3। अब नेक्स्ट क्या है, C1 अपॉन C2। C1 क्या है हमारा, यहाँ 8 है ना, 8 और ये 9 है, 8 अपॉन -9, ए सो कटेगा नहीं। यहाँ से क्या हम ऑब्जर्व किए, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ गया। ठीक है, सिंस A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, therefore that implies what, the equation 1 and equation 2, since A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, therefore the equation lines are intersecting each other at one point कह दिया। So equation 1 and 2 have unique solution, equation 1 and 2 have unique solution। ठीक है, and the system of equation is, the system of equation is consistent। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y, 9x plus 3y plus 12 equals to 0। This we can compare with what, the standard form of equation क्या है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0। अभी हमारा a1 क्या है, a1 equals to 9 and b1 equals to, a1 equals to 9 and b1 equals to 3 and c1 equals to 12। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, ये सेकंड पार्ट फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 equals to 0। This also we can compare with this, a2x प्लस b2y प्लस c2 equals to 0। फिर अभी a2 क्या है, दिस यू कैन कंपेयर विथ, इसका 8x का कोएफिशिएंट क्या है a2, दैट मीन्स ax का कोएफिशिएंट क्या है 18। सो a2 equals to 18, b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट b2, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 6 और c2 क्या है कांस्टेंट क्या है 24, दैट इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब करेंगे क्या है, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 18, दैट इक्वल 9 1s are 9 2s are, दैट एम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 अपॉन b2 क्या है, b1 इज 3, b2 इज 6, दिस ऑल्सो 3, दैट मीन्स what, that implies b1 upon b2 equals to 1 upon 2। then c1 upon c2, c1 क्या है, c1 is 12, c2 क्या है 24 upon 24, 12 1s are 12 2s are, so c1, that implies c1 upon c2 equals to 1 upon 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या पता चला, देखो सारे ये भी 1 अपॉन 2,
ये भी 1/2, ये भी 1/2। यहाँ से पता चला क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, दैट इक्वल्स टू क्या आया हमारा 1/2 आया। देयरफॉर द इक्वेशन therefore equation 1 and equation 2 has what, coincident lines, that means infinitely many solutions, and the system of equation is consistent। हो गया, ये हो गया आंसर, राइट। नहीं, अब चलेंगे थर्ड पार्ट का इक्वेशन क्या है, 6, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिर अब फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विथ व्हाट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अभी a1 क्या है 6 और b1 क्या होगा, b1 y का कोएफिशिएंट क्या है b1, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है -3, b1 -3 हो गया, देन c1 हो गया हमारा 10, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट 10 हो गया। देन अभी सेकंड इक्वेशन 2x माइनस y प्लस 9 कैन बी कंपेयर्ड विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2x का क्वेश्चन क्या है, a2x का क्वेश्चन क्या है 2, सो a2 इक्वल्स टू ये वाला के इसके साथ कंपेयर करिए, वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वल्स टू 9, 0 लिखना भूलिए, ठीक है। सो a2 हो गया 2, b2 हो गया y के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल y का मल्टीपल क्या है, छुप के 1 है, सो 1 हो गया, b2 इज -1, c2 इज 9। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था 6 था, 6/2, ओके, 6/2, द 2 1s are 2 3s are, दैट इज 3 आ गया। देन a1 सॉरी दैट एम्प्लॉयज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3/1 भी कर सकते हो। फिर b1 अपॉन b2 हम निकालेंगे, b1 अपॉन b2 क्या है +3 और ये है -1, दैट इक्वल्स टू +3 और -3, व्हाट इज दैट, -3 -1, या both are minus, that means both will become, that implies b1 upon b2 is equals to 3/1। then c1 upon c2 क्या होगा, c1 upon c2, c क्या है हमारा 10 है, 10 और 9 एक किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमारी क्वेश्चन देखेंगे, हाँ दोनों माइनस है, ठीक है। सो हो गया, देयरफॉर यहाँ से हमको क्या पता चला, ये हमारा a1 अपॉन a2 आ गया, ये हमारा b1 अपॉन b2 आ गया, ये c1 अपॉन c2 आ गया। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना, सो दैट मीन्स क्या है 3 इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। Therefore equation 1 and
2 has no solution. ग्राफ में कैसा आएगा? The straight lines are parallel to each other, so it is inconsistent होगा. समझ में आया? आंसर हो गया. होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच by watching my video. If you like, please press the like button. Thank you. Bye bye.